Hello everyone, this is Ujjwal and I am going to teach you chapter 9 of English Beehive of class ninth. The story is titled The Bond of Love. Now the story Bond of Love describes a very unusual experience, the experience of love that two creatures, one human has for a pet, for a wild animal which he tames. Now, before you read, it asks a question. Can there be love and friendship between human beings and wild animals? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ह्यूमन बीइंग और एक वाइल्ड एनिमल में दोस्ती हो सके? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. अभी यहाँ पे हम बात करेंगे एक ऑर्फन्ड, एक अनाथ स्लॉथ बियर की, जिसको कि बचाया था, जिसको कि सुरक्षित बचा निकाला था ऑथर ने. नाउ अब ये स्लॉथ बियर हैं क्या? स्लॉथ बियर inhabit forested areas including the tropical rainforests of India and the grasslands at lower elevations. Sloth bear have very shaggy hair and long muzzle. Using their claws to dig, they can use their lips to form a tube which can gnaw deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food. Their main food is termites, जिसे हम दीमक भी कहते हैं. You can hear them suck up their food from several feet away. आप ऐसा भी देख सकते हैं कि अपने फूड को वो कुछ दूरी से ही झपट कर पकड़ लेते हैं. Now it starts with, I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. अभी यहाँ पे narrator, I refers to narrator. थर्ड पर्सन अकाउंट है, नरेटर बता रहा है अपनी वाइफ और अपने उस पेट बियर के बारे में कि उसका नाम था ब्रूनो. इट्स नेम वाज ब्रूनो. अभी 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. अभी कुछ लोग थे जो कि वाइल्ड पिग्स को भगा रहे थे अपने खेतों से शूटिंग के दौरान, उनको शूट करते हुए. Some were shot and some escaped. कुछ भालू तो मारे गए और कुछ बच निकले. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी एक छोटा सा काला बियर धूप में आता है. Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and it promptly shot the bear on the spot. अभी मैंने तो ठान दिया था कि मैं किसी भी स्लॉथ बियर को जानबूझकर नहीं मारूंगा बिकॉज दे आर वेरी प्रिटी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से जो बेचारा जो ये जो बीस्ट था वो मारा गया हमारे ही एक साथी के द्वारा, जिसने कि बिल्कुल सटीक निशाना लगाया उस बियर पे ऑन द स्पॉट. एज वी वॉच द फॉलन एनिमल we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. अभी हमने देखा कि इसके बॉडी से एक और छोटा सा जानवर निकल रहा था. Then we saw it was a baby bear that has been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. अभी हमने देखा कि एक बेबी बियर है जो कि अपनी माँ के पीठ पे बैठा है जब उसे शूट किया गया है. The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. तो जो क्रिएचर था वो अपने उस प्रोस्ट्रेट पेरेंट के आसपास चक्कर लगा रहा था, शोर मचाता हुआ, शोर दया की गुजारिश करता हुआ. I ran up to it to attempt a capture. मैं उसकी तरफ उसे पकड़ने को दौड़ा. It scooted into the sugarcane fields. और ये भाग खड़ा हुआ sugarcane fields में. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. अभी अपने companions की मदद से मैं फाइनली इसको दबोचने में, इसे पकड़ने में कामयाब हुआ जब ये मेरी गर्दन के पास आकर मुझे खरोचने और नोचने की कोशिश कर रहा था. We put it in one of the gunny bags we had brought and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. हमने इसे अनाज के बोरे में डाला और हम इसे बेंगलोर लेकर आ गए, जहाँ पर मैंने इसे अपनी वाइफ को एक गिफ्ट के तौर पे प्रेजेंट किया. शी वॉज डिलाइटेड, वह बहुत खुश हुई.
She at once put a colored ribbon around its neck and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. अभी जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये कब एक मेल कब है तो उन्होंने इसका नाम ब्रूनो रख दिया. Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further and within a very few days he started eating and drinking everything else. अभी ब्रूनो को मिल्क पीने की जो हैबिट थी वो काफ़ी पहले लग गई. बॉटल से वो पीने लगा और इसके एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा जाए कि वो कुछ दिनों में ही लगभग सब कुछ खाने पीने लगा था. एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड. और लगभग हर चीज़, ये कहना भी बिल्कुल सही होगा, बिकॉज ही एट पॉरिज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, curry and rice regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc etc etc. मतलब उसे जो कुछ भी मिलता वो खा जाया करता. एज फॉर ड्रिंक, अब अगर हम सिर्फ ड्रिंक की बात करें तो उसे हर तरह के ड्रिंक पसंद थे, वेदर इट बी मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लीकर एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड. चाहे वो कोई भी लिक्विड हो वो इसे पसंद होता. इट ऑल वेंट डाउन विथ रिलिश. और ये सब कुछ काफ़ी आराम से चल रहा था. ये सब उसके बॉडी में बड़े आराम से चला जाता. The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. अभी जो बियर था वो हमारे दोनों ही एल्सेशियन डॉग्स और हमारे किराए में रहने वाले सारे बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल चुका था. He was left quite free in his younger days and spent his home in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. अभी वो फ्री रहता अपने, he was quite free, और अपने शुरुआती दिनों में, बचपन के दिनों में वो इधर उधर घूमा करता, खेला करता, किचन में हमारे ही बेड्स पे सोया भी करता. 8 पैराग्राफ में हम देख पा रहे हैं, वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम. तभी एक दिन एक एक्सीडेंट होता है. आई पुट डाउन पॉइजन टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉन इनटू माय लाइब्रेरी. अभी नरेटर कह रहा है कि उसने तो पॉइजन डाला था, बैरियम कार्बोनेट डाला था लाइब्रेरी में ताकि चूहे और बाकी इंसेक्ट्स मारे जा सकें. लेकिन ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड. और जैसा कि ब्रूनो अक्सर ही लाइब्रेरी में जाया करता, ही एट सम ऑफ द पॉइजन. उसने कुछ पॉइजन खा लिया. पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट. अभी पैरालिसिस उसे इतना भयानक लगा कि वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी. लेकिन वो किसी तरीके से खुद को घसीटता हुआ स्टम्प्स के पास लाता है, अपनी मेरी वाइफ के पास पहुंचता है. हु कॉल्ड मी. I guessed that what had happened. मुझे लग गया था कि क्या हुआ होगा. Off I rushed in the car to the vet's residence. A case of poisoning. Tame beer, barium carbonate. What to do? अभी इससे बड़ी बात क्या होती कि एक पालतू बियर वैसे भी प्रिजर्व्ड स्पीसीज है, उन्हें पालना अलाउड नहीं है, एंड देन कि हमने गलती से उसे पॉइजन दे दिया. So it was going to be a big case over our head. Now 9th paragraph says, Out came his medical books and a feverish reference to index began. अभी हमारे मेडिकल बुक्स डॉक्टर साहब ने निकाला और उनका फीवरिश रेफरेंस भी शुरू हुआ. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Yes, barium salts, barium carbonate. Symptoms, paralysis, treatment, injections. Just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicine. अभी जो डॉक्टर थे वो थोड़े फॉरगेटफुल इंसान, वो भूल जाया करते कि क्या हुआ है. सो दैट्स हिज वे ऑफ स्पीकिंग. बैरियम कार्बोनेट, बैरियम सॉल्ट, लाइक दिस ही वाज सेइंग टू हिज माइंड. अ डैश बैक टू द कार. ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली. अभी हालांकि ब्रूनो अपने पैरों पे ही था, वो चल फिर नहीं पा रहा था और लगातार कमज़ोर होता जा रहा था. कुछ वोमिटिंग, तेज़ सांसें चलना और हेवी फ्लैंक्स एंड गेपिंग माउथ, मुंह लगातार खुला रहना, ये सभी अभी भी उसमें ये सिम्टम्स थे. होल्ड हिम एवरीबॉडी. इन गोज द हाइपोडर्मिक. ब्रूनो स्क्वील्स. 10 cc of antidote enters his system without a drop being wasted. अभी उसकी बॉडी में 10
क्यूबिक सेंटीलीटर्स ऑफ एंटीडोट डाला गया, जो कि एक बूंद भी शायद ही बर्बाद हुआ। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज, स्थिति बिल्कुल वहीं की वही। 10 सीसी और इंजेक्शन दिए गए। 10 मिनट के बाद ब्रीदिंग लेस स्टर्टरस मीन्स नॉइजी ब्रीदिंग। अभी उसकी जो सांसें थी वो उसमें थोड़ा खर्राटा जैसा जो आवाज़ होता है, तेज जोरों का आवाज़। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैनॉट स्टैंड येट। अभी ब्रूनो अपने आर्म्स को मूव तो कर रहा था, लेग्स को मूव तो कर रहा था, हालांकि वो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड। अभी 30 मिनट के बाद ब्रूनो उठता है और वो अच्छा भला खाता भी है। He looked at us disdainfully, as much as to say, "What's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating." अभी वो जब हमारी तरफ देख रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ये कह रहा हो कि भला मुझ जैसे बड़े ब्लैक बियर के लिए ये छोटा सा बैरियम कार्बोनेट कौन सा चीज़ है। Then we get to see another time he found nearly 1 gallon of। दूसरी बार उसने ऐसी ही स्थिति में खुद को पाया था जब उसने 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, जो कार की जो मोबिल होती है, which I had drained from the sump of the Studebaker and I was keeping as a weapon against the inroads of termites, और जिसका इस्तेमाल मैं दीमक को भगाने के लिए किया करता था। इस बाबा द ब्रूनो drank all of it. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. लेकिन इसका उस पर कोई ख़राब असर नहीं हुआ, वो झेल गया। द मंथ्स रोल्ड ऑन, महीने बीतते गए, और ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम। अभी ब्रूनो अपने साइज में काफ़ी बड़ा हो चुका था। ही हैड इक्वल द एलिसिशियंस इन हाइट एंड इवन आउट ग्रोन देम। वो एलिसिशियंस के बराबर हो चुका था, बल्कि उससे भी ज़्यादा। But was just as sweet, just as mischievous, just as playful, and he was very fond of us all. और वो हम सभी से काफ़ी घुल मिल गया था। Above all, he loved my wife, and she loved him too. अभी मेरी वाइफ और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy. अभी हम लोग अपने आसपास बाबा कहते हैं छोटे बच्चों को, तो उन्होंने हिंदुस्तानी नाम रखा था उस बेबी के लिए, उसका नाम उन्होंने बाबा रख दिया। And he could do a few tricks too. At the command Baba wrestle or Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. जब भी उसे कहा जाता बाबा wrestle, तो वो लड़ने को बिल्कुल तैयार हो जाता जो भी उसके सामने आ जाए। Give him a stick, जब आप उसे स्टिक थमा दोगे और कहोगे बाबा old gun, and he pointed the stick at you. Ask him Baba where's baby, and he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. अभी जब उसे कहा जाता बाबा बेबी, तो वो बेबी को झुलाने का एक्शन अपने स्टिक से किया करता, जो कि खुद में छिपा कर रखा करता वो। But because of tenants' children, poor Bruno और बाबा had to kept chained most of the time. अब क्योंकि वो एक वाइल्ड एनिमल था, ही वॉज ऑब्वियसली अ वाइल्ड एनिमल, उन्होंने उसे पालतू बना रखा था, बट ही वॉज अ वाइल्ड एनिमल, सो ही हैड टू बी चेन्ड ऑल द टाइम। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर। तभी मेरे बेटे और मैंने अपनी वाइफ को काफ़ी सुझाव दिया कि इस स्लॉथ बियर को मैसूर दे दिया जाए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम। अब वो घर में रखने के लायक नहीं था, वो बड़ा हो चुका था। After some weeks of such advice, she at last consented hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. अभी जब हमें लग चुका था कि उसे रख पाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने मैसूरू में जू क्रिएटर को लेटर लिखा, पूछा कि क्या आप एक स्लॉथ बियर को लेने में इंटरेस्टेड है, एंड द रिज़ल्ट वाज अ यस। सो उन्होंने एक लॉरी भेजी मैसूरू से बेंगलुरु के लिए और उसे पैक करके भेज दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। हम सभी उसे काफ़ी मिस कर रहे थे, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। हालांकि हम थोड़े रिलीव्ड भी थे।
माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल। अब मेरी वाइफ को समझा पाना पॉसिबल नहीं था। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड। वो काफ़ी रोती रहती। फॉर द फर्स्ट डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग। शुरुआती कुछ दिनों तक तो वो कुछ खा पी भी नहीं रही थी। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। हाउ वॉज बाबा? बैक केम द रिप्लाइज, वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूजेस फूड टू। अभी उन्होंने कई बार लेटर्स भी लिखा क्यूरेटर को, लेकिन जवाब हर बार आता कि वो ठीक है लेकिन वो कुछ खाता नहीं है, खाने से मना कर देता है और काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, काफ़ी परेशान दिखता है। फ्रेटिंग मीन्स वरीड, अनहैप्पी, नॉट रिलैक्स्ड। आफ्टर दैट, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. उसके बाद कुछ फ्रेंड्स जो मैसूर जा रहे थे, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि वो बाबा के कंडीशन को देख कर के वापस आएँ। They reported that he was well but looked very thin and sad. उन्होंने भी बताया कि वो जो बियर था वो ठीक दिख रहा था लेकिन काफ़ी कमज़ोर और उदास था। All the keepers at the zoo said he was fretting. सारे ही जू कीपर्स ने बताया कि वो बेचैन था, वो अनरिलैक्स था। फॉर 3 months आई मैनेज टू रीस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। पहले 3 महीने तक मैंने पूरी कोशिश करके अपनी वाइफ को मैसूरू ना जाने से रोके रखा। देन शी सेड वन डे, आई मस्ट सी बाबा, आइदर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन। सो आई टुक हर बाई कार। तो मैं उसे कार से ले गई। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। अभी मेरे फ्रेंड्स ने ये अनुमान लगा रखा था कि वो बियर मुझे नहीं पहचान पाएगा। आई हैड थॉट सो टू। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर। हालांकि अब जब वो पिंजरे से कुछ ही दूरी पर था तो बाबा उसे देखकर पहचान जाता है। He howled with happiness. She ran up to him, petted him through the bars, and he stood on his head in delight. और वो वहीं पर खुशी से खड़ा था। For the next 3 hours, she would not leave that cage. अगले 3 घंटों तक वो उस पिंजरे के पास से नहीं हटी। She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream and what not. Then closing time came and we had to leave. फिर बंद होने का समय हो गया और हमें वहाँ से जाना पड़ा। My wife cried bitterly. Baba cried bitterly. Even the hardened curator and the keepers felt depressed. यहाँ तक कि जो सख्त व्यवहार वाला क्यूरेटर था वो भी इस बात से काफ़ी उदास हुआ। As for me, I had reconciled myself to know what I knew was going to happen next. अभी मुझे पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसलिए मेरे ऊपर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। Then in 18th paragraph we see, oh please sir, she asked the curator, may I have my baba back? अभी वो क्यूरेटर से पूछती है कि क्या मेरा बाबा मुझे मिल सकता है। Hesitantly he answered, madam, he belongs to the zoo and is government property now. I cannot give away government property, but if my boss, the superintendent at Bangalore, agrees, certainly you have him back. लेकिन अगर मेरे बॉस जो कि एसपी हैं बेंगलुरु में, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो आप इसे बिल्कुल ले जा सकती हो। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर। और तभी बेंगलुरु से रिटर्न जर्नी हुई एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो। अ टीयरफुल प्लीडिंग। अभी मेरी वाइफ और मैं दोनों ही गिड़गिड़ा कर कह रहे थे कि बाबा एंड आई आर बोथ फ्लर्टिंग फॉर ईच अदर, विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी। मेरी वाइफ ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि बाबा और मैं एक दूसरे के लिए बिल्कुल बेचैन हैं, नहीं रह सकते, क्या आप उसे मेरे लिए वापस कर सकते हो। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड। अभी वो एक दयालु इंसान था और वो राज़ी भी हो गया। नॉट ओनली दैट, बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलुरु। इसके अलावा उन्होंने इतना करवाया कि उन्होंने क्यूरेटर को कहा कि वो एक लॉरी का इंतज़ाम करवा करके बाबा को वापस बेंगलुरु तक पहुंचवाने का इंतज़ाम कर दें। In 20th paragraph we see, back we went to Mysore again armed with the superintendent's letter. अभी हम लोग वापस मैसूरू जाते हैं सुपरिटेंडेंट के लेटर के साथ। बाबा was driven into a small cage and hoisted on the top of a car. अभी बाबा को एक छोटे से पिंजरे में रखा गया था और कार के टॉप पे बैठाया गया था। The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. और इस तरीके से उसे वापस बेंगलोर लाने की जो कोशिश थी वो पूरी हुई। अब एक बार जब वो घर आ गया
A squad of coolies were engaged for special work in our compound. An island was made for बाबा. अभी उसके लिए एक स्पेशल आइलैंड बनाया गया. ये लगभग 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था, जिसके चारों तरफ ड्राई पिट सूखे गड्ढे और मोट 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep and that at night. अभी वहीं पे एक वुडन बॉक्स भी रखा गया जिस पे कि बाबा रात में सोया करता. Straw was placed inside to keep him warm. अभी उस बॉक्स को गर्म रखने के लिए उसके भीतर सूखी घास स्ट्रॉ भी रखा गया. And his baby, the gnarled stump along with his gun, the piece of bamboo, और वो सारी चीज़ें जिससे वो बचपन में खेला करता था, the piece of stick, holding a gun, these all things were kept near him to make sure that he continues his play. In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island of Baba was released. अभी कुछ दिनों में ही वो केज बनकर तैयार हो गया और उस पर बाबा को रिलीज कर दिया गया. वो काफ़ी खुश था. अपने पिछले पैरों पे खड़ा हुआ. He pointed his gun and cradled his baby. अभी वो फिर पहले की तरह अपने पिछली टांगों पे खड़ा होकर बेबी को झूला झुलाना या फिर गन दिखाना वाले एक्शंस करना शुरू कर देता है. My wife spent hours sitting on the chair while he sat on her lap. अभी मेरी वाइफ घंटों बैठा करती कुर्सी पे और वो उसकी गोद में. He was 15 months old and pretty heavy too. अभी वो 15 महीने का हो चुका था और काफ़ी भारी भी था. The way my wife reaches the island and leaves it's interesting. अभी किस तरह मेरी वाइफ उस आइलैंड तक पहुंच पाती ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. अभी मैंने एक बड़ी सी रस्सी बांध रखी थी नारियल के पेड़ की ऊंची डाली से जो कि एक लूप के सहारे जुड़ा था. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other. अभी एक हाथ से लूप को पकड़े हुए वो दूसरे से खुद को आगे पुश करती रहती to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. The return journey is made the same way. और वापस भी उसे वैसे ही आना पड़ता. But who can say now that a sloth bear has no sense of affection? लेकिन भला जैसा कि स्टोरी में कहा गया था या फिर उसके फ्रेंड्स ने जैसा रिपोर्ट किया था कि स्लॉथ बियर आपको पहचान नहीं पाएगा. सो नाउ हु कैन से दैट नाउ दैट अ स्लॉथ बियर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? Is it possible to say this, or is it justified to say this? Now, who is the writer of the story? Kenneth Anderson is the writer of the story. I hope the story is quite clear to you. So till then, thanks and goodbye.